Today we are going to start the series of this theorem related to triangles. First, today we are going to discuss the Apollonius theorem, that is a very important part of triangle theorems, and there are so many ways to prove the Apollonius theorem. Suppose you can prove it using the Pythagoras theorem. You can prove this theorem with the help of vector form. You can prove this theorem with the help of acute angle and obtuse angle theorems, and you can also prove this theorem by trigonometry. So first here we are going to learn how to prove the Apollonius theorem with the help of Pythagoras theorem and acute and obtuse angle theorem. You can see the statement of Apollonius theorem: the sum of square of any two sides of any triangle equals to twice the square on half of the third side, together with twice the square on the median bisecting third side. So first we can write here what is given here. So here is AD is the median. We can write here AD is a median. AD is median of a triangle ABC. ABC. Okay. Next, we need to construct here. We need to construct AM. Draw AM perpendicular to BC. Sorry, you can write here first to prove. So here is to prove. We will have to prove. Here we can write AB square plus AC square equals to twice the median containing. Twice the median means 2AD square plus BC square by 2. We need to prove this. So construction, we need to construct here. Draw AD perpendicular to, sorry, AM perpendicular to BC. Now we can use here Pythagoras theorem. As you know that here the statement of Pythagoras theorem: the hypotenuse square equals to base square plus perpendicular square. So first we will take here in triangle AMB, because we need AB square. Again we need AC square. So if we need AB square, so we will have to select one triangle, a right angle triangle AMB. So in right angle triangle AMB, we can write here AB square equals to AB square equals to AM square plus BM square. AM square plus BM square. With the help of, we can write here PT, means Pythagoras theorem. Again in triangle AMC, we have two options. We can take AMD or AMC, but we need AC square, so we will have to select right angle triangle AMC. So
In right angle triangle AMC, you can write here AB means either here is AC square, is AC square equals to we can write here AC square AM square plus CM square. Both will become due to, we can write here PT means Pythagoras theorem, and we can add, because we need AB square plus AC square, so we can write here AB square plus AC square equals to AM 2AM square and BM plus CM BM square plus CM square. You can see AB square plus AC square we need, and here AM square we will have to remove it by suitable replacement. BM is also replacement, we will have to use replacement, and CM also we will have to use replacement. We can write in the place of AM square means AD square minus DM square. Okay, so we can write here means you can put this star. Star means you will have to remove, we don't need this term, because you can see here 2AD square plus BC square by 2. So AM square we can write here twice the AD square minus DM square and plus BM. You can see BM, we can replace BM by BD minus DM. Okay, BD minus DM. So we can replace here BD minus DM ka square, and also we can replace CM. How we can replace CM? We can replace CM CD plus DM. Okay, CD plus DM ka square. Now we will have to put the formula. Here is 2AD square and here 2DM square plus A plus B ka whole square means A minus B ka whole square. We will have to put here PD square plus DM square minus 2 BD into DM and 2 BD into DM and plus CD square. We can write here CD square plus DM square plus 2CD into DM. You can observe here AD is the median. That's why we can write here BD equals to CD. So if we put here BD, then 2 into BD into DM minus 2 into BD into DM will be cancelled, because these terms are equal, because DM is same, minus plus, and BD equals to CD. That's why we can remove these terms. Next, you can observe we will get here 2AD square we will get here 2AD square we need, because you can see here 2AD square, we will have to keep it for the last, minus 2 DM square here is plus, you can see here
dm square minus 2 dm square, we will get here minus dm square minus dm square, and here bd square, here dm, sorry, dm square plus dm square, 2 dm square minus 2 dm square will be cancelled out. It means we have only 2ad square bd square plus cd square, because you can see here dm square plus dm square, 2 dm square, and here is minus 2 dm square, means these terms, terms of dm square will be cancelled. So we will get here 2ad square plus bd square plus cd square plus bd square plus bd square plus cd square. You can see here bd plus cd. So bd equals to cd. We can write here bd equals to cd, and this is bc by 2, because ad is the median. So bd equals to cd and bd equals to half of the bc. So we can replace here 2ad square plus here is bd plus bd, sorry, bc by bc, here is bd means bc by 2. So we can write here bc square by 4 plus bc square by 4. So bc square by 4 plus bc square by 4 equals to 2bc square by 4. So 2ad square plus 2bc square by 4. So we can write here what, ab square plus ac square equals to 2ad square plus bc square by 2. So this we need to prove. ओके, देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे जो है दिया हुआ है एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल में एक मीडियन दिया हुआ है। आपको ये अपोलोनियस थ्योरम को इनका स्टेट करके आपको प्रूव करना है क्या है इसमें। देखिए ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू 2ad स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाई 2। और जब भी आपको ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम बनाना हो तो जो टर्म को आप जो हमको प्रूव करना नहीं है उसमें हमको स्टार पुट करेंगे, ताकि हमको ये पता चले कि वो टर्म को हम लोगों को हटाना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम इसको ए एम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए बी सी का, और सबसे पहले हमको देखिए क्या क्या हमको चाहिए। सबसे पहले हमको ए बी की स्क्वायर चाहिए, तो ए बी स्क्वायर चाहिए, इसका मतलब कौन सा ट्रायंगल हमको लेना पड़ेगा, ये ट्रायंगल लेना पड़ेगा, ए एम बी में लेना पड़ेगा, तभी हम लोग का ए बी स्क्वायर आएगा। तो हम लोग लिख दिए क्या, ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू बी एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर, ये तो पाइथागोरस थ्योरम होता है। फिर हमको चाहिए क्या, ए सी स्क्वायर। देखिए यहाँ पे ये इसके अकॉर्डिंग हम लोग जाएंगे, एक बार में सारा टर्म नहीं आ सकता है, हम लोग को देखना है कि ये कहाँ टर्म को जाना है। दूसरा देखिए यहाँ पे ए सी स्क्वायर है, ए सी स्क्वायर देखिए कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा, ये वाला में ए एम सी में, बिकॉज दूसरा तो कुछ ऑप्शन है ही नहीं। तो यहाँ पे हम लोग ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख लिए, सी एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर। देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे किस चीज़ का सिम्बॉल है, यहाँ पे सिंबल किस चीज़ का है, एडिशन का, तो हम इसलिए हम उसको ऐड कर दिए। तो ऐड किए, देखिए यहाँ पे ए एम स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर आ गया, जो देखो जो एल एच एस में मेरा था, ये तो मेरा एल एच एस का काम कंप्लीट हो गया। ए एम स्क्वायर क्या हो गया, 2m स्क्वायर, और बी एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर। अब देखिए हमको ये सारा टर्म आर एच एस में कुछ भी नहीं है, हमको सारा टर्म को हटाना है। अब हम लोग ए एम स्क्वायर को हटा रहे हैं, तो हमको इस तरह हटाना है कि दूसरा टर्म ना आ जाए, हमको ये सब चीज़ को लाना है हम लोग को, ठीक है। तो यहाँ पे ए एम स्क्वायर देखिए ये वाला ट्रायंगल में ए एम स्क्वायर का रिप्लेसमेंट हम लोग क्या कर लिए, ए डी स्क्वायर माइनस डी एम स्क्वायर, क्यों, क्योंकि हमको ए डी चाहिए, ए डी स्क्वायर माइनस डी एम स्क्वायर इसको लिख लिए यहाँ पे। और अब बी एम को हम लोग क्या कर रहे हैं, बी एम को हमको क्या करेंगे, बी डी लिख लिए, बी डी माइनस डी एम कर लिए, और सी एम को क्या कर लिए यहाँ पे, सी डी प्लस डी एम कर लिए। उसके बाद यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर दिए हम, यहाँ पे देखिए फॉर्मूला इसका तो ये आ गया, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू ए डी स्क्वायर माइनस 2 इंटू डी एम स्क्वायर, और बी डी माइनस डी एम का स्क्वायर। यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग पुट किए कौन सा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2bd इंटू डी एम। फिर इसके लिए हम लोग पुट करेंगे फॉर्मूला, क्या होगा, सी डी स्क्वायर प्लस डी एम स्क्वायर प्लस 2cd इंटू डी एम। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, डी एम स्क्वायर और डी एम स्क्वायर, ये दोनों डी एम स्क्वायर जो है ऐड हो जाएगा तो 2dm हो जाएगा, और ये 2dm है और ये 2dm से ये कैंसिल हो जाएगा। और ये
टू बी डी इंटू डी एम और टू सी डी इंटू डी एम दोनों सेम टर्म है, बिकॉज बी डी और सी डी इक्वल है, इसलिए ये भी टर्म क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो बचा यहाँ पे क्या, टू ए डी स्क्वायर, वहाँ पे लिखे फिर बी डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए बी डी और सी डी क्या है, इक्वल है, और वो मीडियन मीडियन के कारण है, और ये बी सी का आधा है। तो हम लोग बी डी और सी डी की जगह में क्या पुट कर लिए, बी सी बाई टू, तो बी सी स्क्वायर बाई फोर, बी सी स्क्वायर बाई फोर, तो ये आ गया टू बी सी स्क्वायर बाई फोर, तो ये टू बी सी स्क्वायर बाई फोर आ गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ गया, यहाँ पे टू ए डी स्क्वायर, जो टू ए डी स्क्वायर है, और यहाँ पे वन बाई टू कट गया, तो यहाँ पे पी सी स्क्वायर बाई टू, जो हम लोग को प्रूव कर लिए। ये थ्योरम जो है अभी हम पाइथागोरस थ्योरम से प्रूव किए। अब इस थ्योरम को हम एक्यूट एंगल और ऑब्टूस एंगल के थ्योरम से प्रूव करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हाँ, तो अब हम लोग इसको एक्यूट एंगल और ऑब्टूस एंगल के थ्योरम से प्रूव करेंगे, सेम एपोलोनियस थ्योरम को, बिकॉज आपका एक्यूट एंगल और ऑब्टूस एंगल थ्योरम जो है आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, और एपोलोनियस थ्योरम भी दिया हुआ है, लेकिन वो कोई पार्टिकुलर नाम नहीं लिखा हुआ है इसमें। इसमें जो है इसका एप्लीकेशन बहुत सारा दिया हुआ है इसमें, तो इसको हम लोग एक एक्यूट एंगल और ऑब्टूस एंगल थ्योरम भी हम इसको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। तो इसको सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि इसको हम लोग कैसे यहाँ पे एक्यूट एंगल और ऑब्टूस एंगल थ्योरम को अप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो ये जो अब प्रूफ जो कर रहे हैं हम, नंबर 2 जो इसी को प्रूफ जो कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एक्यूट एंड ऑब्टूस एंगल थ्योरम के हेल्प से इसको हम लोग क्या करेंगे, प्रूव करेंगे, इसको इसी के हेल्प से इसको प्रूव करेंगे। और सबसे पहले प्रूफ क्या करना है वो चीज़ लिख लेते हैं पहले। तो प्रूफ इसमें प्रूफ क्या करना है, इसमें प्रूफ करना है ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस द मीडियन स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाई टू, ये हमको प्रूव करना है। अब यहाँ पे देखिए हमको एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल थ्योरम को अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को एक्यूट एंगल ट्रायंगल को हम लोग को देखना पड़ेगा, तभी वो हम उसको अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हम। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है इसका एक्यूट एंगल ट्रायंगल कौन सा है वो चीज़ हम लोग यहाँ पे जज करेंगे। कंस्ट्रक्शन तो सारा चीज़ उसमें करके रखें, हम सिर्फ इसको बता देते हैं कैसे इसको प्रूव करना है। ये कंस्ट्रक्शन तो पहले से इसका किया हुआ है, उसे बता रहे हैं, कंस्ट्रक्शन सेम ही वैसा ही होगा यहाँ पर भी, और इसमें कंस्ट्रक्शन कुछ चेंज नहीं होने वाला, फिगर भी उस चीज़ में हम लोग बता रहे हैं। तो यहाँ पे इसमें सबसे पहले क्या करना है, एक्यूट एंगल। आप देखिए यहाँ पे ये 90 डिग्री, ये अगर 90 डिग्री है तो हम लोग के पास ये वाला जो होगा वो क्या होगा, ऑब्ट्यूस होगा। ऑब्ट्यूस ये वाला ट्रायंगल मतलब ए डी सी क्या होगा, ऑब्ट्यूस होगा, बिकॉज ये 90 प्लस दिस होगा, तो इसका मतलब ऑब्ट्यूस ही में आ जाएगा ये, ठीक है। और बिकॉज 90 प्लस थीटा मतलब ये एंगल जो भी ऐड होगा 90 के साथ ऐड होगा, इसलिए ये ए डी सी जो भी होगा वो ऑब्ट्यूस एंगल थ्योरम होगा। बिकॉज यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी अप्लाई करें तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी दिस प्लस दिस होगा, तो ये ऑलरेडी 90 तो है ही, तो 90 है तो इसको ऐड करेंगे तो 90 से ज़्यादा ही होगा, 90 से ज़्यादा होगा इसका मतलब ये ऑब्ट्यूस एंगल ही बनेगा यहाँ पे, ठीक है, मतलब 90 से ज़्यादा ही बनेगा। अब अगर हम लोग 90 से ज़्यादा बनेगा तो इसको हम लोग सबसे पहले इसको यूज कैसे करते हैं, इसको सबसे पहले ये ट्रायंगल जो है हम लोग ने सिलेक्ट कर लिए इन ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल कौन सा है, ए डी सी। अब यहाँ पे ए डी से ये यूज करेंगे, तो जब ऐसा लिखे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, बाय ऑब्ट्यूस एंगल थ्योरम ऑफ ट्रायंगल। यहाँ पे देखिए ऑब्ट्यूस एंगल थ्योरम, यहाँ पे यही है, ये OLT जो है ऑब्ट्यूस एंगल थ्योरम है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सबसे पहले देखिए पाइथागोरस थ्योरम के जैसा ही इसमें यूज कर लेते हैं, ए सी स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, क्या होगा ए सी स्क्वायर और ये आ जाएगा ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। ये तो पाइथागोरस थ्योरम का ही पार्ट है, लेकिन इसमें कुछ ऐड होगा, ए डी स्क्वायर प्लस
CD स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या होगा प्लस इंटू बेस, इसका बेस क्या है 2CD इंटू क्या होगा CM, 2CD इंटू 2CD इंटू होगा यहाँ पे DM, 2CD इसका बेस क्या है, इसका बेस तो है मेरा CD, तो 2CD हो गया, उसके बाद क्या होगा इंटू DM, ये हो गया, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। इसको 1 ले लेते हैं और एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल अप्लाई करते हैं। एक्यूट एंगल ट्रायंगल कौन सा होगा, आप एक्यूट एंगल ट्रायंगल में ये वाला इसी को यूज करेंगे, ये वाला ट्रायंगल ऑब्ट्यूज में आ जाएगा, ठीक है, अरे एक्यूट में आ जाएगा। तो ये ट्रायंगल कौन सा है, इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल इन एक्यूट एंगल ट्रायंगल, इन एक्यूट एंगल ट्रायंगल कौन सा है ABD। अब यहाँ पर भी क्या होगा, जैसे ऐसे ही होगा, यहाँ पे इसका क्या आ जाएगा AB स्क्वायर, ये होगा AB स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा इसका AD स्क्वायर, AB स्क्वायर ये हो गया, इसके सामने ये वाला साइड AB स्क्वायर होगा, फिर AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर होगा, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, और यहाँ पे सिर्फ माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे इसका क्या होगा ट्वाइस द BD इंटू DM, ये आ जाएगा इसका। ये आया जो है वो कहाँ से आया, एक्यूट एंगल थ्योरम से। ये कहाँ से आ गया, एक्यूट एंगल, इसको लिख देते हैं यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ एक्यूट एंगल थ्योरम ऑफ ट्रायंगल, ये हम लिख लिया। अब इसको इक्वेशन क्या ले लेते हैं 2 ले लेते हैं, और इसको हम लोग क्या कर लेते हैं ऐड कर देते हैं। ऐड करेंगे तो क्या होगा आप देखते हैं, क्योंकि ऐड करेंगे तो ये उधर वाला पार्ट तो आ ही जाएगा, तो हम लोग क्या करते हैं दोनों को ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद क्या आएगा इसका एडिंग इक्वेशन 1 and 2, तो इक्वेशन 1 and 2 को अगर ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसमें लिख देते हैं यहाँ पे AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ये आ जाएगा इसमें, और उधर जो है क्या होगा AD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा 2AD स्क्वायर प्लस 2AD स्क्वायर होगा, और ये होगा उसके बाद CD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर लिखेंगे, CD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर लिखेंगे, और ये वाला टर्म तो कैंसिल ही हो जाएगा क्योंकि दोनों तो इक्वल ही है BD और CD, तो यहाँ पे इसको लिख देते हैं यहाँ पे प्लस 2CD इंटू DM माइनस 2BD इंटू DM, ये दोनों टर्म जो है सेम ही है, बिकॉज CD और BD क्या है, CD इक्वल्स टू क्या है BD, क्योंकि ये तो मीडियन है ना AD, तो जिसके कारण ये क्या होगा, ये टर्म पूरा क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल हो जाने के बाद क्या जो बचेगा मेरा, ये बचेगा क्या 2AD स्क्वायर, और CD को तो CD और BD दोनों इक्वल है, तो इसको क्या करते हैं BC/2 का जो यूज कर चुके हैं हम लोग, यहाँ पे क्या लिख देते हैं BC/2, मतलब BC स्क्वायर बाई क्या होगा 4 प्लस इसका भी क्या होगा BC स्क्वायर बाई 4, तो इसको जब ऐड करेंगे स्टूडेंट्स तो ये आ जाएगा क्या 2AD स्क्वायर, और ये हो जाएगा BC स्क्वायर बाई 2, जो इसी को हमको प्रूव करना था, यहाँ इसको लिख देते हैं AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, तो ये हमको प्रूव करना था, ये इसी चीज़ को हमको प्रूव करना। तो यहाँ पे हम लोग क्या सीखे, यहाँ पे अपोलोनियस थ्योरम का जो है प्रूफ जो है हम लोग एक्यूट एंगल थ्योरम्स और एक्यूट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल थ्योरम से प्रूव किए, और एक पाइथागोरस थ्योरम से प्रूव किए। अब ट्रिगोनोमेट्री का से भी इसको प्रूव कर सकते हैं, लेकिन ट्रिगोनोमेट्री को जब तो कॉन्सेप्ट हम जब ट्रिगोनोमेट्री का लेक्चर डालेंगे उस समय हम ट्रिगोनोमेट्री से इस थ्योरम को प्रूव कर लेंगे। हम इसको एप्लीकेशन, सबसे पहले इसको अगर एप्लीकेशन देखें तो सबसे पहले जब कोई ट्रायंगल दिया हुआ हो और उसमें मीडियन दिया हुआ तो वहाँ पे इस चीज़ का थ्योरम को यूज होता है। इसका बहुत सारा क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी में दिया हुआ है, हम डायरेक्टली इसको उसको हम लोग अपोलोनियस थ्योरम से हम लोग हेल्प से बना लेंगे। इसको एक सिंपल क्वेश्चन कभी कभी जो है इसका
ये क्या इसका सिंपल क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन इसका कुछ एमसीक्यू भी बनता है इसका, ये एमसीक्यू क्वेश्चन कुछ इस टाइप का बनता है, उसको एमसीक्यू क्वेश्चन को हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कैसे इसको अपोलोजियस थ्योरम को आपको अप्लाई करना है। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं हम, एक क्वेश्चन लेते हैं, ये ट्रायंगल है, सपोज कोई भी ट्रायंगल है, ये जरूरी नहीं है कि वो राइट हो, कुछ भी है, ये कोई भी ट्रायंगल है, तो ये मान लेते हैं एक मीडियन है, ठीक है, ये मीडियन है, तो ये मीडियन है, तो ये मान लेते हैं इसका, ये मान लेते हैं क्या 8 सेंटीमीटर, और ये क्या है 6 सेंटीमीटर, और ये जो है पूरा जो है वो ये दोनों इक्वल है, ये जो है टोटल कितना है 10 सेंटीमीटर। तो हम लोग इस चीज़ को कैसे हम लोग को फाइंड करेंगे मीडियन का वैल्यू, हम लोग क्या निकालना है, लेंथ ऑफ मीडियन निकालना है इसमें, ठीक है। तो इसको सबसे पहले हम लोग के पास दिया क्या है वो देखते हैं। हम लोग को सबसे पहले जो है इसमें दिया हुआ है क्या कि ए बी इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू कितना है 10 सेंटीमीटर, और ए सी इक्वल्स टू क्या है 6 सेंटीमीटर, और हम लोग को फाइंड करना है मीडियन। यहाँ पे इस ट्रायंगल का तीनों साइड अगर नहीं दी तो मीडियन का वैल्यू दिया होगा, इसमें कम से कम 4 पैरामीटर्स होता है, 4 पैरामीटर में तीनों साइड हुआ और एक मीडियन हुआ, तो 4 पैरामीटर्स में कम से कम इसको एक पैरामीटर को मतलब क्या करते हो क्वेश्चन में आपसे मांगा जाएगा, 3 पैरामीटर हमेशा दिया हुआ रहेगा। तो यहाँ पे देखिए 3 पैरामीटर दिया हुआ, आपको एक पैरामीटर अननोन है, वहाँ पे एडी है, उसका वैल्यू हम लोग निकालना है, लिख देते हैं यूजिंग अपोलोनियस थ्योरम एटी, यूजिंग एटी, अगर एटी यूज करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिख देते हैं इसका जो स्टेटमेंट है ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा ट्वाइस द ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाय 2। हम दोनों का वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, ए बी का कितना है 8 का स्क्वायर, ए सी का कितना है 6 का स्क्वायर, 2 ए डी का तो निकालना है वैल्यू इसमें 2 ए डी होगा, और बी सी का वैल्यू है 10 का स्क्वायर मीन्स क्या होगा 100/2, तो ये होगा 8 का 64, 6 का 36 इक्वल्स टू 2 ए डी स्क्वायर प्लस क्या 50, सो 100 माइनस 50 इक्वल्स टू 2 ए डी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको 2 ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा 100 माइनस 50 इक्वल्स टू 50 होगा, और ये ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा 50/2, सो ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा 25, सो ए डी इक्वल्स टू क्या होगा √25, और √25 मीन्स प्लस माइनस 5, और लेंथ ऑफ साइड जो होगा कभी नेगेटिव तो होगा ही नहीं, तो इसलिए हम लोग को ये जो वैल्यू लेना पड़ेगा पॉजिटिव में लेना पड़ेगा, तो इसका मीडियन कितना हुआ स्टूडेंट्स 5 सेंटीमीटर हुआ। तो इस तरह करके हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे इससे जो है हम लोग कुछ क्वेश्चन को इस तरह का भी एमसीक्यू का क्वेश्चन कुछ आता है, इसमें आप डायरेक्ट अपोलोजियस थ्योरम का स्टेटमेंट भी याद रख सकते हो, और उसका स्टेटमेंट याद करके आप उसका डायरेक्ट यूज भी कर सकते हो। आप कोई भी प्रॉब्लम जब मीडियन जब देखिए तो आपको ये देखना है कि उसमें मीडियन का कुछ वैल्यू दिया हुआ है, कि अगर मीडियन का अगर कॉन्सेप्ट अगर आता है तो आपको तुरंत आपके दिमाग में एक स्ट्राइक होना चाहिए कि नहीं हमको यहाँ पे अपोलोजियस थ्योरम को अप्लाई करना पड़ेगा। हमको हमेशा जो है इस चीज़ को दिमाग पे रखना चाहिए कि अपोलोजियस थ्योरम का एप्लीकेशन तभी होगा जब मेरे पास मीडियन दिया हुआ हो। इन द केस ऑफ मीडियन आपके पास तुरंत स्ट्राइक होना चाहिए, जैसे आपके पास अगर कोई ट्रायंगल का राइट एंगल दिया हुआ है तो तुरंत स्ट्राइक हो जाता है कि ये आपको यूज क्या करना है, आपको पाइथागोरस थ्योरम। उसी तरह आपको अगर कहीं मीडियन दिया हुआ है तो आपको डायरेक्ट आपको दिमाग पे स्ट्राइक होना चाहिए कि आपको अपोलोजियस थ्योरम ही यहाँ पे आपको उस क्वेश्चन को के लिए आपको अपोलोजियस थ्योरम का सहारा लेना चाहिए। जब आपको इस तरह का कॉन्सेप्ट जो है, अगर आप इस तरह का कॉन्सेप्ट को अगर आप जनरेट कर लेते हैं स्टूडेंट्स, तो आपको ये समझ में आ जाएगा ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स आप कैसे आसानी से टैकल कर पाओगे, क्योंकि आपके पास जो है ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जैसे ट्रायंगल चैप्टर जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ये
वहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको स्टेबल होना पड़ेगा और आपके दिमाग पे सारा थ्योरम सा होना चाहिए कि ये एक्यूट एंगल थ्योरम का स्टेटमेंट ये होता है, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम का पीपीटी का ये होता है, सीबीबीटी का ये होता है, एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल का रिजल्ट ये होता है। तो ये सारा चीज़ आपको टाइप करना चाहिए और जैसे क्वेश्चन आपके दिमाग में आए कि ये क्वेश्चन ये है, तो वो पॉइंट तुरंत आपको रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि जैसे कहीं पे लिखा हुआ है एडी इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तुरंत आपके दिमाग में टाइप होना चाहिए। यहाँ पे हम अपोलोनियस थ्योरम को ले सकते हैं। अगर कहीं लिखा हुआ है कि आपका डी कोई ट्रायंगल में जो है कि 90 डिग्री दिया हुआ है एक एंगल, तो आपको तुरंत सोचना चाहिए इस चीज़ के लिए कि आपको पाइथागोरस थ्योरम की ओर बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो हम इसमें कुछ क्वेश्चन आपको स्टूडेंट्स दे देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट थ्योरम इसका करेंगे जैसे एक्यूट एंगल थ्योरम का और ऑब्ट्यूज एंगल थ्योरम का प्रूव करेंगे इसमें और उसका एप्लीकेशन सिखाएंगे। तो इसका भी एक छोटा एक एप्लीकेशन था, अभी बड़ा इसका एप्लीकेशन 3-4 क्वेश्चन जो आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन हो या आर एस अग्रवाल आर डी शर्मा के कुछ क्वेश्चन ये डाला हुआ है अपोलोनियस थ्योरम का डायरेक्ट यूज करके, तो हम उसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे। तो आपको स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे देते हैं प्रैक्टिस के लिए, तो आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन आपको करना है ताकि आप अपोलोनियस थ्योरम की चीज़ों को, उसका स्टेटमेंट को आप याद, मतलब इसका स्टेटमेंट क्या होता है उसको क्या उसका यूज कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन डाल देते हैं इसका, जस्ट प्रैक्टिस, आप प्रैक्टिस कर लें इसका। जैसे ए बी स्क्वायर, ए बी का वैल्यू हम दे देते हैं, ए सी का वैल्यू दे देते हैं हम, और हम बी सी का वैल्यू दे देते हैं, और हम एक ए डी का वैल्यू दे देते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे कि मान लेते हैं कि ये हम लोग का 10 है, ये हम लोग का 8 है, ये हम लोग का 10 हुआ, 8 हुआ, और ये हम लोग का 7। ठीक है, तो आपको मीडियन निकालना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देते हैं यहाँ पे, ये है, ये आपका 13 दे देते हैं, ये आपका 5 दे देते हैं, ये आपका 12। तो एडी मीडियन निकालना है आपको। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो एक और देते हैं आपको, ये 24 दे देते हैं, ये 5 दे देते हैं, तो और ये 25 दे देते हैं। ठीक है, तो आपको इस तरह करके आपको मीडियन का वैल्यू सारे में निकालना है आपको, और कुछ क्वेश्चन आपको हम प्रैक्टिस कराएंगे। हम मीडियन क्या करते हैं इस क्वेश्चन से रिगार्डिंग नेक्स्ट लेक्चर्स पे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।